afternoon, sir. Yes, good afternoon, Vanshika. Good afternoon to Priyanshi, Priyanka. So today's our emphasis is that we will start this topic on series. Clear? So from Python we will start from scratch. So today we will start with this series, Panda series. And also my request to everyone is that we have so many websites where you can practice the questions of MCQ based questions. Yes, Vanshika पढ़ना ये question number 4. Which among the following options can be used to create a data frame in pandas? Yes, so what will be the answer according to you? I think Python dictionary. The Python dictionary. So which among the following options can be used to create a data frame in pandas? Array से नहीं create कर सकते हम? Arrays and scalar value. सर स्केलर वैल्यूज से तो डाटा फ्रेम क्रिएट नहीं कर सकते, उससे सीरीज क्रिएट कर सकते हैं. Yes. सर एरे से भी हम क्रिएट कर सकते हैं सीरीज. सो लेट अस ट्राई टू चेक दिस वन. हाँ, ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर. ठीक है, जस्ट इज सॉर्ट ऑफ ए टेस्टिंग, बिकॉज जब तक हम पढ़ेंगे नहीं इसको अच्छी तरह से you will not be able to answer properly. So we'll also check out few questions also. So let us move back to the topic that we have studied. I request everyone, Priyanka, Muskan, Priyanshi, to switch on your cameras. Okay, so let's move to the topic. Starting from scratch, what is the series is? So this is a one-dimensional array capable of holding data of any type. So that is the feature. Array consists of the similar type of data. So series can be created using the constructor. This is the method, the series method. First part, the first two parameters are most important, data and index. Then you have data type and copy. So they are rarely used, these two parameters. In the next, you can see these are the ways by which we can create our series. First is from arrays, second is from dictionary, and third is from a scalar value. So we'll be moving a bit fast. This is the program to, this is the empty series. Just you have to make use of the series method, and this is P सीरीज. इसने पांडास ऐसा हम पीडी लिखते हैं, इसने P सीरीज लिखा हुआ है. ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट इज दिस पार्ट इज, जहां पे ये P सीरीज लिखा हुआ है? यस प्रियंका. सर मेरे ख्याल से जो हम पांडास है उसकी शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं. पीडी कर पांडास की हम शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं. इसका जो टेक्निकल नाम है, दिस इज कॉल्ड अलाइसिस. The name that is used for panda becomes now P series. So this concept is called alysis. Next, move to the next point is, ठीक है, so on the left hand side you are given a series. Clear? So this is the series without index. तो इसमें index हमने enter नहीं किया, index will be entered automatically. So this is the series created from a array. Clear?
और यहाँ पे हमने क्या किया है, सीरीज को फर्स्ट पैरामीटर पास किया है एज डाटा। क्लियर? सो ABCD विल बी द आंसर है। अगर हम कोड ऐसे लिखेंगे तो ये इंडेक्स 1 2 3 4 ही आएगा हमारे पास, जस्ट 0 से शुरू होगा। एनीवन? प्रियांशी? हाँ जी, 0 से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? 0 से। यस वंशिका? सर आई थिंक 0 से शुरू। ठीक है। So try to, my request is try to run these codes on your system. So this is the program we have. तो इसका इंडेक्स जो है वो कहाँ से शुरू होगा? 0 से ही शुरू। It will not start from 1. Okay. So let us move to the second part. Second part में है कि arrays की values हमने दी हुई है ABCD, but we have also passed the index values. So let us try this code. Clear? इसमें क्या है हमारे पास? This is the array we have, and here we say that the index is equal to okay. So you can see here we have passed the index values from our own side. So this is the another method of where we have the array as well as the index. Okay. So let's move to the next method of creating the series. So this is the series which has been created from a dictionary. Clear? So this is the first method, and this is the second method. Clear? So let's try this one out. So dictionary 1. So let us say we take few values. So let's first create the series. So you are finding out when we are creating a dictionary like this, so keys will become the index, and the value part will become the value of the series. Okay. So index will automatically created with the values of the keys of the dictionary. Yes. कोई query है किसी की? मुस्कान? Okay, so that was the third method, that is creating the series from a dictionary. इसमें important चीज जो है, that is इसमें index automatically बन जाता है. So you can also specify the index like this. So here, like you can see here, if you pass the index from your side, so it will automatically replace these keys. The third is the series from a scalar value. The next method is creating the series from a
स्केलर वैल्यू। So let us say we have S is the series, PD dot series, the value is let's say 6, and जितना हम इसकी इंडेक्स वैल्यू देंगे ऑटोमेटिकली ये वैल्यू उतनी बार रिपीट हो जाएगी। Clear? So you see here, this is the series created from a scalar value. So these are the different ways of creating the series. Now let us move to the next topic. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें दिए हुए हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आई थिंक बिफोर वी मूव इनटू दी मैथमेटिकल ऑपरेशंस थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं इसके जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ दी सीरीज। कोई पता है कोई एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट जैसे आई यूज हियर एट्रीब्यूट एस इज द नेम ऑफ द सीरीज, एस डॉट तो कोई मेरे को इस प्रोग्राम में ये जो मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज किया है, कोई इसकी फंक्शनैलिटी बता सकता है आप में से कोई? एनीवन? हाँ, यस प्रियंका। सर जब हमने सीरीज को कोई नेम देना होता है ना, तो हम पहले सीरीज का नेम लिखते हैं, फिर डॉट नेम कर कर जो भी, जैसे आपने न्यू सीरीज नेम दिया है तो वो उसको नेम मिल जाएगा। जैसे हम नीचे देख सकते हैं उसमें नेम लिखा हुआ है न्यू सीरीज और बाद में उसका डाटा टाइप आ गया है। Yes, good. So that is how we can give the name, and similarly we can work on the rest of the parameter like s dot values. इसकी कोई आउटपुट बताएगा s डॉट वैल्यूज की? यस मंशू। Sir, 6 will be printed in a array form. Yes. तो जो सारी वैल्यूज हैं वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। सिमिलरली मूव टू दी वन मोर attribute is size. So size of this array is 5. You can see here 5 elements are there in the series, so size is 5. एक और इसका attribute है empty. empty attribute क्या करता है? ये सारी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, if you, my request to everyone is please 120 रुपीज की आती है NCERT वाली बुक। so my request to everyone is कि आप वो भी बुक बाई परचेज कर, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन क्लासेस लगाते हैं, काफी स्टूडेंट्स ने ले ली है, सो 120 आई थिंक इज नॉट ए ह्यूज अमाउंट। तो वो आप लोगों के पास एक रिसोर्स बन जाएगा फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ये जो एम्प्टी है, जस्ट रन दिस वन। अब ये एम्प्टी क्या करता है? एम्प्टी इज बेसिकली एट्रीब्यूट जो चेक करता है कि सीरीज एम्प्टी है या नहीं है, बिकॉज द सीरीज कंटेन्स, ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है एस, इट कंटेन्स number of elements, so it's not empty, so इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? false। जैसे मैं एक और सीरीज बना लेता हूं, let's say r, I create a new series r pd dot series, yes, इसकी आउटपुट क्या आएगी? ट्रू। नहीं, ये ट्रू नहीं है। इसकी आउटपुट आएगी ब्लैंक सीरीज। अभी तो मैंने ब्लैंक ही बनाई है। सो दिस इज दी बेसिकली ब्लैंक सीरीज, ठीक है?
और अगर मैं इसके ऊपर एम्प्टी एट्रीब्यूट रन करता हूं r.empty, तो इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। गेटिंग और नॉट? क्योंकि ये जो r जो ऑब्जेक्ट है दिस इज एम्प्टी, तो इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। और अगर उसके अंदर कोई वैल्यू होगी, सीरीज के अंदर कोई वैल्यू होगी, सो देन इट्स रिजल्ट विल बी फॉल्स। सो दिस इज दी फंक्शनैलिटी। हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट डिस्कस किए हैं? एक हमने नेम किया है, एक हमने साइज किया है, एक हमने एम्प्टी किया था, एक हमने वैल्यूज किया। क्लियर? लेट अस फोकस। एक और है हमारे पास पैरामीटर, सॉरी एट्रीब्यूट, दैट इज इंडेक्स डॉट नेम। तो ये इंडेक्स डॉट नेम कैसे काम करता है? लेट अस create a list okay, then convert into series. ठीक है जी, और इसको मैं करता हूँ प्रिंट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया, इंडेक्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इस सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडेक्स डॉट नेम इज इक्वल टू, I keep it as new index, and now I want to have print of the same series. ठीक है, तो क्या है, अब इंडेक्स का टाइटल क्या आ गया हमारे पास, न्यू इंडेक्स। क्लियर? सो सिमिलरली जैसे हमने सीरीज का नाम रखा है, वैसे ही हम इंडेक्स का नाम भी रख सकते हैं। उसके लिए पैरामीटर है इंडेक्स डॉट नेम। तो एस क्या है, एस इज माई ऑब्जेक्ट, और ये मेरा एट्रीब्यूट है इंडेक्स डॉट नेम। ओके, तो ऐसे इसको यूज करना है। सो अभी हमने कितने एट्रीब्यूट कर लिए हैं, यू सी हियर। एक हमने नेम किया, साइज, एम्प्टी, वैल्यूज, और एक हमने किया है इंडेक्स डॉट नेम। ठीक है, तो these attributes we have focused. Now so let us again start the class. Now let us focus on the methods. What are the different methods that we have? Methods in series. तो सीरीज के हम तीन मेथड्स का यूज करते हैं। वन इज दी हेड मेथड, टेल मेथड, एंड थर्ड इज दी काउंट मेथड। ठीक है जी, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, हेड मेथड को स्टार्ट करते हैं। सो प्रिंट एस, तो ये सीरीज है हमारे पास। अब मैं क्या करना चाहता हूं, डॉट सीरीज डॉट हेड, एंड आई वांट टू जस्ट प्रिंट द फर्स्ट टू वैल्यूज। दिस 2 and 3 विल बी द पार्ट ऑफ द आउटपुट। ओके, और अगर मैं सीरीज में हेड को रिप्लेस करके टेल मेथड को यूज करता हूं, and I just want to take 3 values from the bottom side, so this is the take the 3 values on, or by default that it takes 5 values, 1 2 3 4 5, and one more method we have is the count method. So this will count the number of values in the series, so this is equivalent to the size parameter.
जैसे साइज काम करता है एज ए एट्रीब्यूट, सिमिलरली द काउंट मेथड वर्क्स ओवर हियर. नाउ लेट अस मूव टू द पीपीटी नाउ, क्योंकि पीपीटी के अंदर ये दो चीजों के ऊपर एम्फोसिस नहीं दिया हुआ होता. सो लेट अस स्टार्ट विद द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ द सीरीज. तो आपको पता है कि ये जो इस स्लाइड में जो एग्जांपल दी हुई है, तो ये सम कैसे हो रहा है? वंशिका बता सकते हो ये सम कैसे हो रहा है? सर इंडेक्सेस को कंसीडर किया जाता है सीरीज में. Yes, और अगर yes. इंडेक्सेस सेम हो तो प्लस हो जाता है. वेरी गुड. सो बेसिक थिंग है कि ये नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेकंड सेकंड, वो तो ठीक है, बट इसके साथ इंडेक्स भी जुड़ा हुआ है. नाउ लेट अस ट्राई a different kind of a question from here where you may get the greater degree of clarity. So let's say I create a S1 is my first series, PD dot series, and the values here are, let us say 1, 2 and 3, and index is A, and second is B, and third is C. एक बार इसको प्रिंट करवा लेते हैं. Let us create one more series of the similar type. Control C, Control V, and the name of the series is S2. Values I keep the same, but here I just change the index value from this. एक का मैंने index value X कर, and I just want to see the second series. So this is the values in the second series. तो अभी जो point अभी वंशिका ने फोकस किया है, लेट्स से आई वांट टू हैव द सम ऑपरेशन S1 प्लस S2. सो दिस इज हाउ द सम इज गोइंग. देखो जहां जहां पे इंडेक्स वैल्यू A है तो वहां का सम आ गया 1 + 1, उसका आंसर आ गया 2. जहां पे हमारा C हो रहा है C, तो C के कोरस्पॉन्डिंग 3 + 3 6 आ गया. बट अगर हम B की बात करें, B जो B है इट इज, इसकी वैल्यू है 2, बट B जो है वो सेकंड सीरीज में B नहीं है, एंड सेकंड सीरीज में जो X है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू सीरीज 1 में नहीं है. तो दैट्स व्हाई इनका सम कैसे आ रहा है? नॉट ए नंबर, बिकॉज जब ये X की वैल्यू जो है, X की वैल्यू 2 है, तो 2 की जब दूसरे सीरीज में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो एक एम्प्टी वैल्यू है, एक में 2 की वैल्यू, जब वो दोनों आपस में सम होंगे, सो बिकॉज वो सम जो है वो पॉसिबल ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग नॉट ए नंबर, बिकॉज हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि X के कोरस्पॉन्डिंग सीरीज 1 में कौन सी वैल्यू है. तो दैट्स व्हाई जैसे वंशिका ने एक्सप्लेन किया कि जब भी हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, जब सम है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, हर जगह वी हैव टू बी रिमेंबर द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडेक्स. इंडेक्स के अकॉर्डिंग सम होगा, इंडेक्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन होगी, इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिवीजन होगी, इंडेक्स के अकॉर्डिंग सब्सट्रैक्शन. सो दैट्स वेरी वेरी वाइटल पॉइंट विद रिगार्ड टू द मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो ये हो गया हमारे पास पहला ऑपरेशन, addition and the multiplication. ये head function आ गया. We have already discussed the head function. Then is the tail function. You are already aware that this is going to print the last 3 values. ये है accessing. If we have to access a particular value, so like this. चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक और मेरे माइंड में आया क्वेश्चन, दैट इज ये सीरीज है, इस सीरीज को मैंने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है. आई हैव टू प्रिंट दिस सीरीज इन ए रिवर्स ऑर्डर. 6 पहले आए, फिर 5 आए, फिर 4 आए, फिर 3, फिर 2.
हाँ जी वंशिका। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो फिर हम एस को लिखेंगे एस और साथ में देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर 2 टाइम्स सेमीकोलन एंड -1। ठीक है जी। सो सिंपल सी बात है कि इसको हमने क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, हियर वी हैव द स्टार्टिंग वैल्यू, यहाँ पे होती है एंडिंग वैल्यू, और यहाँ पे होती है दी स्टेप वैल्यू। तो ना तो मैंने स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन की है, ना मैंने एंडिंग वैल्यू मेंशन की है, मैंने स्टेप वैल्यू मेंशन कर दी -1। तो -1 आपको पता है ये बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट से शुरू कर देता है। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा था इसका? 6, देन 5। आपको पता है लिस्ट को कहां से ये शुरू करेगा? राइट हैंड साइड से शुरू कर देगा। -1 शुरू करता है राइट हैंड साइड से, लाइक दिस। पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर लाइक दिस। So with this we have finished all the concerning topics of the series. ठीक है, ये है हमारे पास how we retrieve the particular elements of the series. Please go through your book also, retrieve the data from selection. So this is how we can apply with the LOC, retrieve a particular selection. ILOC stands for integer values and LOC stands for the value based on the that we mention here as the index values. Okay, now let us try last part of the today's lecture is just try few questions. देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। MCQ based question we have, and we have to be very alert with regard to the MCQ based questions. So I think this question, just skip this one. Skip this one also. Yes, तो ये क्वेश्चन अभी हमने ट्राई किया था. What is the question? Among the following options that can be used to create a data frame. So basically अभी हमने data frame के ऊपर फोकस नहीं किया, but data frame can be created from a scalar value, can be created from a n dimension array also, and from a dictionary also. So all of the above is the answer. Check answer, and let us try few more questions. Yes. So this question, I have asked this question in the exams also. Identify the correct statement. Yes, Muskan पढ़ना बेटा first option. The standard marker for missing data in Panda is not a number. Okay. And second point is series act in a way similar to that of an array. Both of the above, none of the above. थोड़ा सोच के बताओ क्या आएगा आंसर इसका. Sir, both of the above. Yes. So both of the statements are correct here. So the answer is correct. ठीक है, इसमें हमारा level of confidence should be very much high whenever we are asking the answering the question. What happened to the indexes when any operations are done on unaligned series? अभी हमने practically किया ये question. What happens to the indexes when any operations are done to the unaligned series? अभी हमने दो series की थी, उनकी alignment proper नहीं थी. First series was not aligned to the second series. So you get the total, union, intersection, and all of the above. क्या आएगा हमारे पास आंसर? What happens to the indexes when any operations are done on the unaligned series? बहुत घुमा के डाला हुआ है क्वेश्चन, बट इतना भी टफ नहीं है. देखो इंटरसेक्शन से क्या आता है? इंटरसेक्शन का मीनिंग है कि सिर्फ वही इंडेक्स वैल्यू डिस्प्ले हो विच आर कॉमन टू बोथ दी वंस. तो ये तो ऑप्शन गलत है. टोटल, तो टोटल का क्या मीनिंग होता है? टोटल मीन सारी पहली सारी दूसरे की, वो भी नहीं था. यूनियन में क्या होता है? यूनियन में जो कॉमन वैल्यू होती है वो
एक बार आती है, और जो नई कॉमन वैल्यूज होती वो भी सिंगल टाइम रिप्रेजेंट होती है. सो आई थिंक यूनियन इज द बेस्ट ऑप्शन. वैसे आप बताओ आप लोगों को कौन सा ऑप्शन लगता है, उसको यूज कर लेते हैं. यस वंशिका. हाँ जी, आई थिंक यूनियन. यूनियन है. चलो यस मुस्कान. सर इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन, वेरी गुड. एंड यस प्रियंका, आप भी बोल दो. पूरी चॉइस है आप लोगों के पास. जैसे आप बता रहे हो वैसे तो यूनियन ही होगा फिर. हाँ हाँ ठीक है. चलो और देखते हैं और कौन है हमारे. प्रियांशी, प्रियांशी एंड हर्षिता. सर यूनियन. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस वन आउट थोड़ा. ठीक है, अभी हमने इसको प्रैक्टिकली अपने सेकंड एंड पे अभी. नाउ लुक एट दी. अगर आपको कुछ डाउट है, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, नाउ वी हैव डन द क्वेश्चन वेरी रिसेंटली. यही क्वेश्चन को हमने किया था. दिस इज द क्लियर. ये देखो, ये सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है. अब अकॉर्डिंग टू द अनअलाइंड, ये देखो इसका इंडेक्स डिफरेंट है, इसका इंडेक्स डिफरेंट है. इट मींस देयर इंडेक्स वैल्यूज आर नॉट अलाइंड, दे आर अनअलाइंड. तो जब मैं इसके ऊपर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो आप देखो सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही है. ए भी रिप्रेजेंट हो रहा है, बी, सी और एक्स. 4 वैल्यूज है हमारे पास, ए, बी, सी एंड एक्स. So all 4 values you are able to see in the answer. So the operation is a union operation. It is not a intersection operation. It is not a total also. Total means कि ये सारी आए और ये भी सारी आए, वो भी नहीं है. And all of the above is also a. Let us try one more question before we close this class. ठीक है, तो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, यू कैन नोट डाउन दी वेबसाइट data-flare. तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जस्ट गूगल में डालो दैट यू वांट टू हैव pandas, क्विज ऑन pandas बेस्ड क्विज. तो थोड़े से क्वेश्चन होंगे. सो लेट अस ट्राई. ए सीरीज इज अ वन डिमेंशनल एरे व्हिच इज लेबल्ड एंड कैन होल्ड any data type. This was quite easy question. चलो एक लास्ट ये कर लेते हैं. यस मुस्कान, बेटा आप पढ़ना. मुस्कान वाले बैठ. Find out the incorrect statement. Both series and end dimension arrays can be passed as argument to numpy function. The major difference between series and end dimension is that the data is arranged based on label in series when series is operated on. A data frame is similar to a fixed size dictionary because you can use the index label to get and set values. Fourth is none of the above. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है. बट बोथ सीरीज एंड एंड डिमेंशनल एरे कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट्स टू numpy फंक्शंस. तो बेसिकली हमने फंक्शंस ऐसे किए नहीं हुए. numpy फंक्शंस में देखो, सीरीज में तो हम एंड डिमेंशनल एरे पास करते हैं. एंड डिमेंशनल एरेज में बोथ सीरीज एंड एंड डिमेंशन कैन बी पास एज आर्गुमेंट टू numpy फंक्शंस. अब numpy के फंक्शन कौन कौन से हमारे पास. numpy में हमारे पास अरेंज मेथड है, we have so many functions are there. तो हमने हमारे पास पूरी क्लैरिटी नहीं है on numpy. So you will not be able to answer on this first question is कि हमने numpy के functions किए नहीं हुए बहुत ज्यादा. सिर्फ एक एरे को यूज किया है और एक अरेंज मेथड को यूज किया है. सेकंड देख लेते हैं, दैट इज the major difference between the series and n dimensional array is that the data is arranged based on the label and series when series is operated upon. Yes, so this is the correct statement. Data in a data frame is similar to fixed size dictionary because you can use the index labels to get and set values. डिक्शनरी के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ because you can use the index labels to get and set values. Get and set values means that is we can change the values also.
but data frame is similar to fixed size. Yes, anyone wants to attempt? ठीक है, because first option तो हमारे पास clear नहीं है, but still someone wants to make a try on this question. क्योंकि देखो ये जो रेडीमेड है ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बने हुए हैं, so that point we have to think upon. ABCD में से बताओ कोई, जब पता नहीं है आंसर का तो यूज दी ABCD. I think C is the answer. Yes, चलो कर देते हैं ट्राई. Yes, Vanshika is on the right track. ठीक है, पहला तो थोड़ा वैसे ही ambiguous था, we have not tried it out. ये तो statement 100% true है. So data frame is similar to fixed size dictionary because you can use the index labels to get and set values. Index label तो वैसे नहीं होगा ये, ठीक है. So Vanshika has done the right job here. So please, my request is please look at a few MCQ based questions also. Clear? थोड़ी आप try करो, maybe sometimes you get the difficult questions also, so that's not an issue. Clear? And today's task is please go through all the topics of series. Series के अंदर हमने 4 चीजों को implement किया है. Creation of series, how to create the series. Second is how to apply the different attributes. How to apply the 3 methods. एक count method था, एक head था, एक tail था, और last था how to apply the mathematical operations on the series. So please go through these topics. कोई doubt होगी तो कल की क्लास में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग you can attend the class. ठीक है जी. कोई क्वेरी है आप लोगों की साइड से? चलो, थैंक यू बेटा.